Okay, so we are out of FA Cup, and I'm not very happy about it, but I think I'm fine with it that we are not in it anymore because that saves us from many more matches. So now we are out in the fourth round. तो इसके बाद फिफ्थ राउंड होता, फिर क्वार्टर फाइनल्स होता, फिर सेमीफाइनल्स होता, फिर फाइनल्स होता, एंड दैट कंसिडरिंग कि हम हर गेम ही जीत जाते तो इतने मैचेस रहते अपने खेलने के लिए. So which is why I am fine with it that we are not in it. But yes, of course, I really wanted us to, be the contenders of every trophy. I'm upset. Of course, I was like really upset during the match, but now I'm like, when you think about it, I think, like, should we blame Slot for it? Like, there's so many tweets that I'm seeing that people are literally thrashing Slot's choice, that he did not pick up very strong squad, or maybe we should have a better bench. But do you think that we as Liverpool fans have that luxury to have a stronger or bigger squad? We don't have that. So why are we expecting so much? I don't understand. This is the best we could do. Championship के bottom पे है प्लीमथ भाई. उनके against we could not get the win with the team that Slot selected. I think the selection was spot on. I don't think that he could have done it any better. बिकॉज अभी ही 2 दिन के बाद एवर्टन के अगेंस्ट मैच है, और उसके अगेंस्ट सोचो आज कल रात खेल के 2 दिन के बाद एवर्टन के अगेंस्ट मैच है. कितना तुम अपने सीनियर वही 11 प्लेयर्स को घिसाते रहोगे? दैट इज़ माई पॉइंट. Which is why I'm not very worried about Slot for his selection, or I would say that he bottled it up and did not consider it as a big competition to participate in. But I honestly feel that it's the players that let us down very much. Like, so many senior players, I'm so disappointed with them, because this is the time, these are the matches in which they have to prove their worth. This is what they did not do. That is why I'm saying I do not blame Slot for this election, because I do feel that as Liverpool fans, we need to understand one thing, that we are not going to sign players at all. जनवरी विंडो देखो क्या हुआ है. समर विंडो देखते पिछली बार कैसा साइन किया था. कितना टाइम हो गया वी आर नॉट साइनिंग प्लेयर्स, और इतना कम स्क्वाड होने की वजह से हमको अपने अकेडमी प्लेयर्स पे रिलाई करना पड़ेगा. अगर वही 11 जो अपना मेन प्लेयर्स हैं उनको खिलाते खिलाते हर मैच में खिलाओगे, मैं बोल रही हूँ तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला. देयर वाज अ सीजन व्हेन वी वर गोइंग टू फाइट फॉर द क्वाड्रुपल, और उस टाइम पे हम FA कप एंड कैरेबाओ कप जीते थे, लेकिन बाकी के 2 कॉम्पिटिशन नहीं जीते थे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इस बार हम वो जीतने वाले हैं. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट वी हैव टू टेक द रिस्क. हमको पता चलना चाहिए कि हमको कौन से कॉम्पिटिशन्स के लिए हम लड़ना है. अगर मैं कल बेंच पे सोबोस्लाई, मैकलिस्टर, ग्रेवनबर्ग किसी को भी रखती टू चेंज द कोर्स ऑफ द गेम इन द सेकेंड हाफ, या कुछ मिनट्स और मिलते हैं उनको खेलने के लिए, तुमको पता है सोबोस्लाई टॉटनम के अगेंस्ट लास्ट के 30 सेकेंड्स बचे थे. वी वर ऑलरेडी सो मेनी गोल्स अप, 30 सेकेंड्स बचे हैं, वो तब भी एंड में पूरा ऐसा लाइक टू विन द बॉल बैक भाग रहा है उधर. This is what our senior players are doing. I don't want them to, like, put so much effort in a game like this, in which our players, the selected players, should have won it. They should have won it for us. I'm telling you, Plymouth did not really create many chances. They were not that threatening. They were not that clinical as well. That was a freak moment that happened when हार्वी एलियट, आई डोंट नो हाउ वाज ही डिफेंडिंग लाइक दिस, और इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा है वो. बनता भाई तुमको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, ऑनेस्टली नहीं है ज़रूरत. इट्स लाइक तुम इतना अपना वर्थ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो स्लॉट को, विच आई अंडरस्टैंड कि तुमको करना है. यू वांट टू प्ले फॉर द सीनियर टीम, लाइक यू वांट टू बी इन द स्टार्टिंग 11, बट ये सब करने की वजह से तुम इतना ट्राई करो, तुम छोटू से हो, तुम इतना ट्राई करो टू विन द बॉल बैक, एंड देन योर हैंड्स आर अप. लाइक आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस इज हाउ दे गॉट द पेनल्टी. वरना क्लिनिकलिटी की वजह से अगर मैं बोलूँ, प्लीमथ वॉज नॉट देयर, वी कुड हैव वन इट. लास्ट के 20 मिनट्स में जो हमने एनर्जी लाया है टीम में, जो मोमेंटम दिखाया था हमने कल मैच में, लास्ट के 20 मिनट्स में, वो स्टार्टिंग में नहीं दिखता. अगर तुमको स्लॉट को क्रिटिसाइज करना है वो वहाँ करो. समटाइम्स आई फील दैट अपना जो गेम प्लान रहता है, अगर हम ट्रांजिशन पे हिट कर रहे हैं या वॉट एवर आर प्लान इज, काउंटर अटैक्स रहते हैं, वी डू दैट सो स्लोली. मतलब अपने पास बॉल इतनी टाइम तक रखते हैं, आराम से देखते हैं, तब तक जो दूसरा टीम है वो अपना पोजिशनिंग ले लेता है. या सो देयर वर पीपल देयर, दैट्स व्हाई आई हैड टू लाइक शिफ्ट द पोजीशन. अभी भी इतना कंफर्टेबल होता नहीं है टू शूट इन फ्रंट ऑफ पीपल. मुझे सही में ये चीज़ लगता है कि सिलेक्शन से ज़्यादा मुझे अगर स्लॉट को क्रिटिसाइज़ करना है, मैं उनके स्लो
मोमेंटम जो रहता है गेम का उस पर क्रिटिसाइज़ करूँगी, क्योंकि क्या होता है वो जो तुमको एनर्जी लास्ट के 20 मिनट्स में दिखा था कि जैसे हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे, वो सिर्फ लास्ट के 20 मिनट्स में दिखा, पहले वो अर्जेंसी दिखता ही नहीं। हम हमेशा, मैंने इतने सारे मैचेस देखे हैं, वी आर लाइक ट्रेलिंग बाय 1 गोल एंड देन उसके बाद हमारा हमसे ज़्यादा दूसरे टीम का अर्जेंसी दिखता है टू गेट द सेकंड गोल रादर देन आस टू गेट द इक्वलाइजर। तो यहाँ पे है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम विद स्लॉट दैट आई फील that we need to rectify that as soon as possible. Now if we talk about the lineup, अगर हम पूरे सिलेक्शन का ही बात कर लेते हैं, आप खुद सोचो फॉरवर्ड से इतना तगड़ा लाइनअप हम कहाँ उठा सकते थे। गैक्पो सीनियर टीम का पोजीशन बना चुका है, हैज़ बीन वंडरफुल फॉर अस, फाइन, सो वी हैड टू हैव लुइस डियाज इन दैट पोजीशन। उसको इतने सारे मिनट्स मिले हैं खेलने के लिए, इतने टाइम से ही हैज़ नॉट बीन स्कोरिंग गोल्स फॉर अस, लेकिन सीनियर टीम में वो हम लेट गो कर देते हैं बिकॉज देयर आर अदर्स टू कंपनसेट फॉर इट। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ फॉरवर्ड, ही इज़ सपोज टू get inside the penalty box to get something out of it, at least take a good shot. He can't just keep trailing around the byline and outside the penalty box to just create something out of it. He does not do that. He did not do that yesterday. He was really really poor. Now think about the center forward that we had. कैप्टन था भाई जोटा, कैप्टन, इतना गंदा परफॉर्मेंस रहा है। अभी आप बोलोगे इंजरी से वापस आ रहा है ये सब, भाई थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना गेम में, कितना ही मौका दे सकते हैं। कल जोटा का बहुत बहुत बनता था अपने हाथ में चीज़ें लेने का एंड एक्चुअली बी क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट। देन कम्स किएसा, you can't expect from players like these to have a poor game when you know that you're playing with a younger squad. You have to be the prime example of leading these youngsters, but वहाँ तुम ही बन गए हो एकदम ऐसे बैठ के कि भाई I don't know what to do. Like these are the moments where you're supposed to pump the young generation and get something out of the game. I think this is clearly what our senior players did not do yesterday. अगर आप मिडफील्ड की बात करें, जैसे हमने शुरू किया तो एंडो was supposed to be in the middle as a defensive block, the first line of defense. Then comes Harvey Elliott. Harvey Elliott has been giving us very good moments, but वो प्रूव करने के लिए इतना ओवरबर्डन कर रहा है खुद को, जो उसका नेचुरल गेम है वो दिखता ही नहीं। क्या नहीं था स्ट्रॉन्ग बताओ? एलियट है, एंडो है बीच में, नयोनी को खिलाया, इन लोगों के साथ मिडफील्ड में हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाते मिडफील्ड को। हाउ डज इट मेक एनी सेंस? इन लोगों को नहीं मालूम है क्या कैसे जेल करना है? फॉरवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग है, सेंटर में अपने 2 प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बार सीनियर टीम के लिए खेल चुके हैं। एंडो वॉज द बेस्ट प्लेयर येस्टरडे, द बेस्ट प्लेयर मैन। क्या खेला है बंदा, मतलब ओनली प्लेयर हु एक्चुअली वर्कड येस्टरडे। देन इफ यू टॉक अबाउट द डिफेंसिव लाइन, सिमिकस है, हम रॉबर्टसन को एज लाइबिलिटी बनता इतना देख चुके हैं, बट ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल इन द पास्ट गेम्स, बट सिमिकस हैज़ ऑलवेज बीन दैट चॉइस कि भाई रॉबर्टसन को बिठा के सिमिकस को लेके आओ, एटलीस्ट कॉर्नर्स बेटर लेता है। तो सिमिकस का गलत चॉइस था वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। क्वांजा सेंटर बैक, उसको नहीं खिलाएंगे क्या सेंटर बैक? गोमेज कल ठीक है 100% फिट नहीं था, लेकिन उसको लेके आए, वी कुड रिलाई ऑन गोमेज ऑन दैट। इमेजिन अगर गोमेज पहले हाफ में नहीं इंजर होता, 9th मिनट पे इंजर हो गया यार बंदा, अगर वो नहीं होता, आई एम टेलिंग यू, द game would have been a little better. But defensively, I don't think that we committed mistakes at all. Not at all, but at least we didn't commit mistakes. It was the midfield जो कि गायब था पूरे टाइम, हम लिंक ही नहीं कर पा रहे थे। तो यार रूट 1 फुटबॉल खेलने की कोशिश करते यार, एटलीस्ट कोई तो ऐसा डिफेंडर होता जो एक ऐसे चांसेस बना के देता, आगे ऐसा लॉन्ग बॉल देता, कुछ तो देता ताकि फॉरवर्ड्स कुछ कर पाते। गोमेज जब इंजर हो गया तो एंडो को आके सेंटर बैक खेलना पड़ा। जेम्स मैक्यूनल अपना राइट बैक पे खेल रहा था, फिर मबाया को लेके आए, मबाया ने बेफालतू का डिसेंड करके बॉल को ऐसा किक कर दिया उधर बेफालतू का, येलो खा के बैठ गया। सच अ हॉरिबल गेम ही हैड। भाई क्या मतलब, मैं बोल रही हूँ ना, सिलेक्शन के वाइज अगर आप सोचोगे एक चैम्पियनशिप टीम के अगेंस्ट तुम खेल रहे हो, तो प्लीमथ के अगेंस्ट दिस वाज अ वंडरफुल सिलेक्शन। कर्टिस जोन्स वाज नॉट 100% फिट, तो नहीं लेके आया उसको यार। देखा ना गोमेज के साथ क्या हुआ, वाज नॉट 100% फिट, लेके आया इंजरी। वी नीड कर्टिस यार इन द सीनियर टीम। I don't think that selection-wise I had any problems at all with Slot. I think it's the freak moment that happened with Harvey Elliott जिसकी वजह से उनको पेनल्टी मिला, वरना शायद 0-0 में ही एंड हो जाता। बट जो अर्जेंसी, जब किएसा एज अ लेफ्ट विंगर खेलने लगा, तब कुछ चांसेस देखने को मिले उसके, वरना उससे पहले एकदम गायब था बंदा। तो जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सीनियर प्लेयर्स पे है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स एज वेल, वो एकदम मिसिंग था। भाई तुम जितना मर्जी बोल लो, आई थिंक मैनी पीपल वुड
say that I would still have like either a Gravenberch or a McAllister on the bench so that they could at least connect with the forwards in the midfield, क्योंकि midfield एकदम गायब था. But I would not have that at all because 2 दिन बाद like I said that Everton के साथ मैच है, अभी भी बहुत सारे मैचेस पड़े हैं. I would have it like this कि ठीक है FA Cup से आउट हो गए because players did not play well. I said this in my previous video as well that हमारा midfield को तुम bubble wrap करके रखो because we are going to rely on them so much. अगर ऐसे games में हम ट्रस्ट नहीं कर सकते अकेडमी प्लेयर्स पे या फिर ऐसे प्लेयर्स पे जो कि काफ़ी बार सीनियर टीम के लिए खेल चुके हैं लेकिन अभी के टाइम पे उनका ज़रूरत है, तो किस पे करोगे? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. किस पे? अकेले जेम्स मैकेनिल पे तो तुम टीम डिपेंड नहीं कर सकते. एक ही बंदा था जो बहुत ट्राई तो कर रहा था, एटलीस्ट भाग रहा था कि ठीक है कुछ करते हैं, लेकिन बाकी के पूरे सीनियर प्लेयर्स के आप स्टैट्स देखो, इट्स हॉरिफाइंग. Seriously, it is. So, which is why I will say that again and again that I completely back Slot on his selection. I think he relied on the players. He thought that we would get something out of it, but did not really expect कि इस तरीके से we will concede that goal, जो कि penalty था, clear cut penalty था. I don't know what Harvey Elliott was doing like there. So yeah, that happened. वरना मैं सही में बोल रही हूँ थोड़ा बेटर रिजल्ट रहता अगर गोमेज अपना फिट रहता. एंडो को मिड में काफ़ी कंट्रोल कर लेता वो मिडफील्ड को, एटलीस्ट वो रहता, अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अच्छा रहता. एंडो बहुत अच्छे बॉल्स निकाल के दे देता. एलियट के पास पासेस रहते, एलियट शायद कुछ क्रिएट कर देता. बट वही है, इफ़ एंड बट्स चलते रहेंगे. बट दिस इज़ हाउ द गेम वेंट. आई एम ऑफकोर्स डिसअपॉइंटेड. आई विश दैट वी कुड विन इट ऑल. बट you know that as Liverpool fans you will always have to limit your expectations because हमारे पास उतना ज़्यादा कुशन नहीं है like other clubs कि भाई दे धड़क प्लेयर साइन करते रहो, जितना मर्जी बजट बढ़ाते रहो, does not matter because we do not have that luxury, we do not have that. So we have to make the best out of what we have. So I think this was the best we got out of what we have. So yeah, that is how it went. But kudos to Plymouth. I think they played a very good game. स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब इतना ज़्यादा उनमें एक मोटिवेशन दिख रहा था ना टू गेट something out of this game. Like the magic of FA Cup was clearly visible in Plymouth, जो कि बॉटम पे है चैम्पियनशिप में. उन्होंने टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग को हरा दिया. दिस इज़ व्हाट दे डिड. लाइक दिस इज़ द मैजिक ऑफ द कप. आई विश वो मैजिक हमारे लिए होता बट नहीं था हमारे लिए. बट ठीक है, क्या कर सकते हैं. लेट्स टेक इट लाइक दिस. आई होप दैट वी हैव अ बेटर गेम अगेंस्ट एवर्टन. आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट वैन डाइक एंड कोनाटे को रेस्ट मिला. आई एम वेरी हैप्पी दैट सो मेनी प्लेयर्स गॉट रेस्ट बिकॉज वी डू नीड दैट. ये इनमें से जो अपने हैं ना स्टार्टिंग 11 जो रेगुलर 11 है अपने, इनको कुछ हो गया ना भाई, मैं बोल रही हूँ भूल जाओ, इसके बाद कुछ भी होने वाला है. हम सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ द सीज़न के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा खेला था, नया मैनेजर आया था, वो जो विन इट ऑल वाला एक फ़िलॉसफी अपना बना है ना, इट्स नॉट फॉर क्लब्स लाइक आर्स जहाँ पे अपना जो ओनर्स हैं उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन वेयर वी आर इन द करंट टेबल. वी आर नॉट सिटी और एनी अदर क्लब कि हाँ प्लेयर्स का ज़रूरत है तो लेफ़्ट एंड राइट साइन कर रहे हैं. दैट्स नॉट आस. सो विच इज़ वाई आई एम सेइंग दैट ठीक है जिस तरीके के हैं हम लोग उसके हिसाब से इट्स फाइन. It's really fine. Let's move on from that and have a very good game against Everton. Wolves आगे बहुत सारे matches हैं. We have to win it all. That is the only thing I want. Premier League should be ours. That's what I want. Okay, that is the video, guys. Please don't forget to comment down below. What do you think about what I said in the video? Like, do you support Slot about his selection or not? Yeah, that is it. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Namaste.